Jet आहे jet area. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome all. Okay, today our topic is sensory system examination. Today let's start with today. Jet. Shall I start? Okay, we have option of the chat area. You can talk with me on the chat area and I will discuss here. Okay, you can listen on me. Are you listening me? Yes, ma'am. Okay. Okay. So sensory examination consists of two things. Next, really basically they are the testing the primary sensory modalities as well as the cortical sensory function. So what do you mean by the primary sensory modalities? That includes the time, temperature, touch, and vibration and joint position sense. These are the senses which are the primary modalities that are controlled with, through the sensory system, but they are through the tracts. And secondly, we have the other are through the cortical system. So we'll discuss one by one. Primary somatosensory area of the human cortex is located in the post-central gyrus of the parietal lobe. Whatever the tracts, जो भी tracts होते हैं आपके sensory के sensations जहाँ से भी जाती हैं body से, आपकी जितने भी sensory areas हैं वहाँ से जब भी sensation जाएंगी, then they go and travel and ultimately they will go to the post central gyrus जो parietal lobe में होता है. ठीक है, it's located in the primary somatosensory area से कहा जाता है. ठीक है, जो हमारे टच सेंसेशन को वहां पे फील करता है. Okay. So the cortical homunculus is the brain's physical representation of human body. Homunculus, cortical homunculus जो हमारे पास है, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, वो हमारे सेंसरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. इट्स अ न्यूरोलॉजिकल मैप ऑफ एनाटॉमिकल डिविजन्स ऑफ द बॉडी. जो आपका न्यूरोलॉजिकल मैप है वो इसमें दिखा गया है. ठीक है. Surface area of cortex dedicated to body part correlates with the amount of the somatosensory input from that area. क्या होता है, जितना भी surface area cover है, for example, अभी मैं आपको दिखाऊंगी homunculus. Okay, this is the homunculus. Okay, somatosensory area. अब इसमें इन्होंने क्या दिखाया है, यहाँ पे जो एरिया है लिप का है, देन टंग का है, नोज का है, देन ये जो मेन कोर्टिकल एरिया है आपका सोमेटोसेंसरी एरिया, वहाँ पे हैंड्स हैं, फिंगर्स हैं. ठीक है, और ये आपका मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो होता है, सेंसेशन जहाँ पे ज़्यादा फील होती हैं. देन आपका बैक का आता है, हेड, नेक एंड ट्रंक एंड फर्दर जो पार्ट्स आते हैं. ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे मोस्टली जो आप देखते हैं न्यूक्लियस पे आपके मोस्ट सेंसिटिव एरियाज जो हैं वो आपके जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा सेंसेशंस फील करते हैं. तो ये होमोन्यूक्लियस की जो पिक्चर हमें दिखाई गई है, तो वो कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ कॉर्टेक्स डेडिकेटेड टू द बॉडी पार्ट्स कोरिलेट विद द अमाउंट ऑफ सोमेटोसेंसरी इनपुट फ्रॉम दैट एरिया. जहाँ से भी हमारे पास हैंड से आएगी सेंसेशन तो कहाँ पर जाएगी, हैंड से आएगी तो इस एरिया में फील होगी. ठीक है. So the large area of the cortex devoted to sensations in hands, while the body neck requires as much as small area. जितना भी most sensitive part है वो हमारा hands को जो है वो हैंड्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है होमोन्यूक्लियस ने, और बाकी जो है बैक का एरिया वो स्मॉल एरिया ऑक्यूपाई करता है. सोमेटोसेंसरी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व द प्रोप्रियोसेप्शन एंड पोस्चर इन प्रोसेस्ड इन द सेरिबेलम. अब जो प्रोप्रियोसेप्शन एंड पोस्चर है वो कहाँ पे मेनली प्रोसेस्ड होते हैं, सेरिबेलम में. And the cortical homunculus is the brain's physical representation of human body. It's a neurological map of the anatomical division of body. वही same thing जो हमने यहाँ पे discuss की है. Okay. So before understanding each and every tract, you must know about the reflex arc. Okay.
सो व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क, ये आपको पता होना चाहिए कि सेंसेशंस जो भी रन करती हैं वो दे रन थ्रू द रिफ्लेक्स आर्क. सो एनीवन टेल मी अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क? नो वन नोस रिफ्लेक्स आर्क के बारे में? आप चैट एरिया में बता सकते हैं रिफ्लेक्स आर्क के बारे में. आपके सबके पास चैट है सामने कि व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क. ओके, गो अहेड. A reflex arc is a neural pathway that controls a reflex. जो भी हमारी बॉडी से सेंसेशन जाएंगी, रिफ्लेक्स जाएंगे, वो रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू जाएंगे. In vertebrates, most sensory neurons do not pass directly to the brain, but synapse in the spinal cord. जितनी भी हमारी सेंसेशंस हैं, वो डायरेक्ट ब्रेन में नहीं जाती. They first go into the spinal cord. वहाँ पे इनके synapses बनते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बनता है, then they ascend to the brain. How it happens? This is the reflex arc. Look at this. सेंसरी जो है वो फीलिंग हुई, पेन लगी, ठीक है, पेन सेंसेशन हुई, पेन रिसेप्टर से यहाँ पे दे कैरी द सेंसेशन टू द डोर्सल नर्व रूट. डोर्सल नर्व रूट गया, देन डोर्सल रूट गैंग्लियन. ये थी आपकी एफेरेंट. एफेरेंट अब डोर्सल रूट अंदर आएगी, स्पाइनल कॉर्ड में आपके पास ग्रे मैटर है, वहां पे इंटरन्यूरॉन, और यहाँ पे जो है आपका रिफ्लेक्स आर्क बन रहा है. साइनेप्सिस होगी विद दी इफेरेंट न्यूरॉन के साथ, ठीक है. दिस इज जो साइनेप्स हो रहा है एफेरेंट और इफेरेंट के दरमियान और बीच में इंटर न्यूरॉन्स हैं. दिस इज अ कंप्लीट रिफ्लेक्स आर्क. फिर यहाँ से जो इफेरेंट जाएंगी गो टू द मसल एंड कॉजिंग दी कॉन्ट्रैक्शन. वॉट एवर आपने पेन फील किया है तो आपके मसल जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे. आपने टेम्परेचर फील किया है तो आप वहाँ पे विथड्रॉल इफेक्ट होगा. सो वॉट एवर इज इफेक्ट, पहले सेंसरी फील हुई और फिर उसके बाद इफेक्ट आएगा. तो ये सारा जो है डिपेंड करता है इस रिफ्लेक्स आर्क पे. इफ इट इज इंटरेक्ट तो आपका सेंसरी रिफ्लेक्स आर्क कंप्लीट होगा और आपके जो है वो इफेक्ट्स आएंगे मसल पर. मींस कि एफरेंट और के बाद इफरेंट पे जो इफेक्ट आएगा थ्रू दिस रिफ्लेक्स आर्क. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सेंसरी सिस्टम. ओके, सो वट एवर द रिफ्लेक्स जो है आपकी जितने भी आए, आप सारी सेंसेशंस जो रन की रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू, देन असेंड होंगी. असेंड होने के बाद आपका कौन सा एरिया है? दिस द सेंट्रल सर्कस. इसका जो है वो प्री सेंट्रल होता है, पोस्ट सेंट्रल होता है. प्री सेंट्रल प्राइमरी मोटर एरिया है जहाँ पे आपकी मोटर एक्टिविटीज जो है वो होती हैं, और जो पोस्ट सेंट्रल है दैट इज अ सेंसरी एरिया. जितनी भी सेंसेशंस आएंगी अल्टीमेटली कहाँ जाएंगी? पहले जो है वो स्किन से आई, देन जो है वो एफरेंट के थ्रू आई वर्टिकल कॉलम में. उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क बना. रिफ्लेक्स आर्क के बाद देन ये असेंड होंगी ब्रेन की तरफ, और ब्रेन में जाएंगे कहाँ पे? पोस्ट सेंट्रल गायरस में. और फिर जो है वो उस एक्टिविटी को पता चलेगा कि भाई हमें ये काम करना है, देन मोटर एरिया को रिस्पॉन्स होगा और फिर जो है वो इफेरेंट की तरफ जाएगा. ओके, सो नेम द सेंसरी ट्रैक्ट्स. कौन कौन से सेंसरी ट्रैक्ट्स हैं जिसके थ्रू हमारी सेंसेशंस रन करती हैं? एनीवन? स्पाइनल कोड, ठीक है. ये आपने चीजें सेकेंड ईयर में की होंगी न्यूरो एनाटॉमी में. ओके, जो आपके पास जो है ये इफरेंट है एंड इफरेंट है. दीज आर द असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड दीज आर द डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स. जो भी आपकी सेंसेशंस हैं दे रन थ्रू दी असेंडिंग ट्रैक्ट्स, जिसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, दैट इज द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड डोर्सल कॉलम जो है आपकी कैरी करेंगे वाइब्रेशन, प्रोप्रोसेप्शन एंड डीप टच को. डोर्सल कॉलम कैरी करेगा जिसे मेडियल लिम्बस भी कहते हैं, ठीक है. देन लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आपका कैरी करेगा पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन. वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आपका लाइट टच कैरी करता है. ओके, जब ये असेंड करेंगे थ्रू द असेंडिंग ट्रैक्ट्स, ये असेंड करके जाएंगी सेंसेशन टू द पोस्ट सेंट्रल गायरस में. एंड फिर जो है वो एक्शन होंगे वो किसके थ्रू? वापस जब हमारे पास मोटर सप्लाई आएगी वो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल एंड वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल. ये हमारा जो है टॉपिक नहीं है जो आप कर चुके हैं कवर मोटर सिस्टम में. हमारा जो है वो सेंसरी है जो इसके थ्रू हम जो है वो ट्रैक्ट्स रीड करेंगे. So the spinothalamic tracts, spinothalamic जो fibers होते हैं, they are very small fibers. Okay, they cross decussate 1 to 2 spinal nerve segment over the point above the point of entry. जैसे ही वो enter होती हैं fibers तो वो decussate कर लेती हैं, means कि opposite side पे decussate करके वो travel करती हैं to the brainstem. Okay, then they go to the various nuclei in the thalamus. From thalamus, the information is then relayed to the cortical area such as the post central gyrus.
ठीक है, दिस इज योर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये भी आप जो है सेकंड ईयर में ट्रैक्ट्स ट्रीट कर चुके हैं, ये जस्ट वन रिवीजन। ठीक है, आपके जहाँ पे टेक्टाइल रिसेप्टर्स है, यहाँ पे टच हो, देन जो है वो पेन और टच वॉट एवर, यहाँ पे जो है ये आए, जैसे ही एंटर हुए तो ये डिकसेट, इन्होंने डिकसेशन कर ली। डिकसेशन करने के बाद ये असेंड हुए इन द स्पाइनल कोड। ये सेंसिटिव ट्रैक्ट्स असेंड होने के बाद कुछ न्यूक्लियस थे थैलेमस में, वहाँ पे गए, वहाँ पे क्रॉस करने के बाद दे गो इनटू द इंटरनल कैप्सूल एंड अल्टीमेटली फाइनली दे रीच द पोस्ट सेंट्रल गायरस इन द पैराट्यूरोम। मींस कि जो हमारा सोमेटोसेंसरी एरिया है ब्रेन में, यहाँ पे फाइनली सेंसेशंस एंड करेंगे। जब यहाँ पे ये असेंड होगा ट्रैक्ट, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे असेंड होने के बाद जो है मैसेजेस जाएंगे कि अभी हमने हॉट फील किया है, देन फिर जो है वो वहाँ पे से वापस जो मोटर फाइबर्स आएंगी और दे ऑल हैपन इनटू द प्री सेंट्रल गायरस। ठीक, तो ये था हमारा स्पाइनोथैलेमिक, दिस वेरी शॉर्ट ट्रैक्ट। सेकंड जो है आपका है वो है पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट। It is afferent fibers transmitting vibration and proprioception travel up the medulla in the ipsilateral posterior column as a fasciculus gracilis and fasciculus cutaneous। ये जो posterior column है travel करता है medulla में, जो हमारे nucleus पड़े हैं कौन कौन से हैं, fasciculus cutaneous, cuneatus and fasciculus gracilis, then which carry information from the lower limbs and upper limbs respectively। कौन सी sensations ये ले जाएंगे आपकी, ये आपकी sensations होगी proprioception की and vibration की। Then subsequently the afferent projections cross over and ascend to the thalamus। Finally thalamus के पास जाएंगे and then उसके पास जाने के बाद ये somatosensory area जो आपका primary sensory area है। This is your posterior column tract। यहाँ से fibers आए, vibration, proprioception, light touch की sensations आई। जब यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे आने के बाद ये ascend करेंगी dorsal column में, जहाँ पे दोनों nucleus पड़े हैं। ठीक है, dorsal column में ascend करती गई, यहाँ पे decussation हुई, असेंड करती गई एंड देन यहाँ पे आपके मेडुला में और जो है वो न्यूक्लियस पड़े क्यूनियटस एंड ग्रेसिलस। असेंड करने के बाद ये आई आपके थैलेमस में, देन इंटरनल कैप्सूल एंड अल्टीमेटली दे रीच द सोमेटोसेंसरी एरिया इन द पैराटलोम। यहाँ पे ये एंड करेंगी और ये कौन कौन से पाथवे से ले जाएंगी, वाइब्रेशन, प्रोप्रोसेप्शन एंड लाइट टच। ओके, सो एनी क्वेश्चन, अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, क्योंकि अभी हम वीडियो देखने जाएंगे जिसमें आप जो है कंप्लीटली सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। I will open the chat area. Okay, if anyone have any question till now, so ask me। सेंसरी सिस्टम हमारा बहुत शॉर्ट है, ठीक है, बहुत छोटा सा है ये टॉपिक, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस सिस्टम्स, दिस ट्रैक्ट्स, तो यू मस्ट नो अबाउट एग्जामिनेशन किस तरह परफॉर्म करनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नो क्वेश्चन? ठीक है, नाउ विल प्ले द वीडियो। इसे आप जो है वो कंसंट्रेशन के साथ देखें, देन जो फिर हम आगे चलते हैं। Sure.
Hello, Omar. My name's Amy. May I examine you? Yes. I'm going to position your arms. I'm going to touch your arms with some cotton wool. Could you look up for me? Could you tell me when you feel me touch you? Test light touch with a wisp of cotton wool and ask the patient to respond to each touch. Time the stimuli irregularly and make a dabbing rather than a stroking or tickling stimulus. Test the dermatomes systematically and compare sides. Yes. Yes. Does that feel the same on both sides? Yes. 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 Use a fresh neurological pin, not a hypodermic needle, to test pain sensation. I'm now going to gently touch you with a pin. Do you feel this is sharp? Yes. And this is dull? Yes. Please say yes when you feel me touch you with this as sharp. Testing the C5 dermatome. Yes. Yes. C6. Yes. Yes. C6 again. Yes. Yes. T1. Yes. Yes. C6. Yes. Yes. C7. Yes. And C8. Yes. Next, test temperature. Use a cold metallic object like the tuning fork. Do you feel this is cold? Yes. And here? Yes. Sophisticated assessment using tubes of water at controlled temperatures is seldom performed. Now, use the flat base of the tuning fork to test vibration sense. Can you feel this vibrating? Yes. Test on the distal bony prominences. Can you feel it here? Yes. And is it vibrating? Yes. If sensation is absent, work proximally. Can you feel it here? Yes. And is it vibrating? Yes. Next, test proprioception, or joint position sense. Demonstrate first with the patient's eyes open. Look at your finger. This way is up, and this way is down. Please close your eyes and tell me which way I'm moving your finger. Up. Hold the digit at the sides to avoid giving information from pressure. I'm going to do the same with the other hand. Again, I'll show you. This is up, and this is down. Test the distal interphalangeal joint of the middle finger. If sensation is impaired, move to more proximal joints in each limb. Test two-point discrimination using an opened-out paperclip. Ask the patient to look away and apply either 1 or 2 points to the pulp of the patient's forefinger. Can you tell me whether I'm touching your finger with 2 points or with 1? 2. 1. Test both the middle fingers and the thumbs. 1. You can adjust the distance between the 2 points to determine the minimum separation that is resolved. 1. 1. 2. Next, we test stereognosis, tactile recognition of familiar objects. Please close your eyes. I'm going to place an object in your palm. Please tell me what it is. A coin. That's good. And this? This and the subsequent examinations should be performed on both hands. For brevity, we show only the right. Test for graphesthesia, the ability to identify a figure traced on the skin. Please close your eyes and tell me the number. Use an orange stick or a blunt pencil. 8. Open your eyes. This is your index, your middle,
your ring, and your little finger. Please close your eyes and tell me which finger I'm touching. This tests the ability to point localize. Difficulty identifying the touched finger is called finger agnosia. Index. Little. Test for sensory inattention. Keeping your eyes closed, which side am I touching you on? Left. Right. Both. Open your eyes. Thank you. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Okay, so all you have done through this video. Okay, so did you understand about this, or is there any issue? Okay. So in this video, if you have any problem, इसमें जो है इन्होंने जो है वीडियोस में पूरा sensory examination cover कर लिया है. First they have done the pain and temperature. ठीक है, through the इन्होंने touch किया पहले cotton से. They said this is very recommended. आपके लिए जो book हम recommend कर रहे हैं Macleod's, इसकी ही examination आपके लिए proper है, यही आपको देखनी है. ठीक है. उसमें पहले इन्होंने टच जो है आपको बताया कि टच किस तरह करना है, स्ट्रोक नहीं करना. अगर आप स्ट्रोक करेंगे उस कॉटन को तो पेशेंट को जो है वो सेंसेशंस होंगी बिकॉज ऑफ द हेयर फॉलिकल्स की वजह से. जस्ट टच द कॉटन ऑन द एरियाज एंड आस्क पेशेंट आर यू फीलिंग और नॉट. तो उन्होंने टच के लिए किया, देन दे डन द पेन एंड टेम्परेचर के लिए उन्होंने जो है कोल्ड जो है ली जस्ट द ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया जो भी इनके पास अवेलेबल था उस टाइम पे. तो ये उन्होंने पहले ये ट्रिक्स किए. The pain, touch and temperature के बाद the lateral column हमारा cover हो गया. Then we go for the proprioception and 2-point discrimination. This is for the cover of the posterior column. उसके लिए उन्होंने जब joint position sense patient से पूछा hand में, वही हम feet में भी कर सकते हैं. Similarly 2-point discrimination उन्होंने 2 pins ली और 1 pin के patient recognize कर सकते हैं या नहीं कर सकते. These are the tricks जो हमने किए हैं हमारे primary modality sensations की. उसके बाद उन्होंने जो किए sensations वो है strychnosis and the ग्राफेस्थेसिया एंड एग्नोसिया जो हम अब डिस्कस करेंगे. जो कॉर्टिकल एरियाज होते हैं सेंसरी के एंड इफ प्राइमरी सेंसरी मॉडलिटीज आर नॉर्मल. प्राइमरी सेंसरी मॉडलिटीज जो हमारे पास थी वो थी पेन, टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, जो है 2-point डिस्क्रिमिनेशन. ये हमारे अगर नॉर्मल मिलती है पेशेंट में, देन कॉर्टिकल सेंसेशंस और हायर ऑर्डर एस्पेक्ट्स ऑफ सेंसेशन कैन बी टेस्टेड. फिर हम करते हैं कॉर्टिकल सेंसेशन पेशेंट की वो नॉर्मल है या नहीं है. उनके लिए क्या कौन से टेस्ट होते हैं? Tested when there is a reason to suspect disorder. जब हम कुछ सस्पेक्ट करते हैं तब हम पेशेंट में करते हैं. ठीक है. They assist with localization of the nervous system disorders के अगर हमें उसमें कुछ पॉजिटिविटी मिलती है तो हम अपने नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर को कंफर्म करने के लिए करते हैं. These include tactile localization, stereognosis, graphesthesia, 2-point discrimination. ये जो है आपको running out of time. Okay. The running out of time. Okay. ठीक है. Then the cortical sensory testing routinely हम परफॉर्म नहीं करते, but you should know about it कि ये किस तरह की जाती हैं, जो इन्होंने वीडियो में बहुत क्लियरली, बहुत प्रिसाइजली इन्होंने बहुत अच्छी तरह बताई हैं. ठीक. And in the end, ये जब हम लोकलाइजेशन करते हैं, एग्जामिनेशंस करते हैं, we do diagnose some diseases through this. कौन कौन सी डिजीज हम डायग्नोस कर सकते हैं? पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो गई डायबिटिक पेशेंट में, रेडिकुलोपैथीज हो गई, लंबर डिस्क हर्निएशन हो गई. हाउ वी डायग्नोस दीस डिजीजेस ये हम कल डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है सेंसरी सिस्टम का. ठीक है. अंटिल नाउ जस्ट टेल मी कि यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, एनी इशू, देन आस्क मी. In the chat area you can ask me any question. No question? Everything is clear to you? आप सबको ये चीज क्लियर होगी सेंसरी सिस्टम की, आई होप.
क्योंकि बहुत सिंपल, बहुत प्रेसाइजली था। ये वीडियो आपको बहुत क्लियर कर लेगी हर चीज़ को। चेक्स के बारे में यू ऑल नोन वेरी वेल, बट अभी जो आपने सिस्टमिक एग्जामिनेशन किया है सेंसरी का, you should perform, you can perform at home as well or on patients, but you must have the instruments to do this. Okay, thank you.